Hello students, welcome back. In last classes we have discussed about the matrices 3.1 exercise, 3.2 and 3.3. You can see that previous videos. Now in this class we are going to discuss about 3.4 exercise, that is of matrix, elementary operations transformation, that can be of row or can be of column. So this is a very important exercise according to that CBSE, or many questions will be asked from this exercise. That can be a competition section you can discuss, or we can discuss CBSE board examination. In both questions are asked. So let's we discuss about this. Okay, what is exact elementary operations are there. So first thing is that you can interchange, means interchange of any two rows or columns. Interchange of any two rows or columns. For an example, let's take one example that any matrix A is there having element 1, 2, 3, 4. Simple thing is that you can apply that operation. Either you can apply like that R1 replaced by R2. As we have discussed, this horizontal representation is known as rows. So suppose this one is row R1 and this is R2. Now you can replace this R1 with R2 or R2 with R1. So after this operation, what you will get? You will get this first row will become now second row and second row will become first row. So this is the row elementary operation. You can do this. Second one is you can also do this like that. You can also change the column. Suppose you want to change C1 C2, but you can consider one thing, when you are doing such kind of operation, you are interchanging R1 and R2 with R1. So you need to apply this double arrow sign, means reverse arrow also you need to apply, vice versa. That C1 changed with C2, then C2 will also change with C1. Okay, so now for this same example, we are doing that C1 replaced with C2 and C2 replaced with C1. So this vertical representation is known as column. So this one is C1 and this is C2. Then after applying this operation, what you will get? You will get this first column will become second column and second column will become first column. You will have 2, 4, 1, 3. This is the column operation. So this is the first operation that you can do in this row and column elementary operation. Now discuss about the second operation, that another second operation that what you can do, that is the multiplication. Multiplication of any row or column with any non-zero constant. अब जो भी कांस्टेंट से किसी भी रो या पर्टिकुलर कॉलम को मल्टीप्लाई करोगे तो वो नॉन जीरो कांस्टेंट होना चाहिए. फॉर एन एग्जांपल यू कैन डू लाइक दैट C1 रिप्लेस्ड बाय K1. You can also do that like R3 replaced by, for these are just an example, you can do that like KR3. You can do this for an example. Suppose that matrix is that having elements 1, 7, 9, 6. So you can also do this like that. If you want to change, you can do 3a, means you can multiply it with constant, so that you can get 3, 21, 27 and 18. This is the multiplication with particular matrix. But in this case, if you want to do that operation like that, R1 replaced by 3R1, so that means now you can multiply this matrix with 3 only with this particular first row, in this first row, so that you will get 3, 21 and second will remain constant. You can do this operation. Third thing is that, okay, let's take one more example that we can discuss here. Suppose if you want to you want that this element should be 1. For an example, आपको लगता है कि elements 1 होना चाहिए, this element should be 1. You can also do this like that. You can see this is the second row. You can do this, that R2 replaced by 1 upon 9 R2. You can see if you will multiply this 1 upon 9, so these elements will become 1. So now what you will have? You will have A, that is equal to 1, 7, 1 and that is 6 upon 9, because this will become 9 into 1 upon 9. So this will become 1 and this is 6 upon 9. We will get this. Now come to another property, the third one property,
The third one property is that addition of element of any row or column to any other row or column. For an example, you can do this like that. You want to replace C1 with C1 plus C2, but one thing you keep this thing in mind, that column elements you can add with corresponding column elements only. You can't add like that C1 replaced by C1 plus R2. You can't do this like that C1 replaced by C1 plus R2. You cannot do this. Means only a row you can add, or either you can add columns. So you can also do this R1 replaced by R1 plus R2. You can also do this like R1 replaced by R1 minus R2. You can do these things, but you can't do that row and column and column. For this, let's take an example. Any matrix is, that is, for an example, it's a 1 2 2 3, and you want to make that operation, that R1 replaced by R1 plus R2. Suppose you want to do this operation, that R1 replaced by R1 plus R2. So you can see this one is the R1 and this one is R2. So you can add that corresponding elements to that matrix, but keep one thing in mind. If you want to change, or you are doing operation this in R1 only, so R2 remains unchanged. R2 will not be changed. Means for an example, this is 2 3 na, so this will remain 2 and 3 only. You can't change this. You can only change this 1 and 2. That R1, you are applying an operation in R1, so only R1 will change. R2 will remain constant. So that is R1 plus R2, means 1 plus 2, that it will become 3, 2 plus 3, so this will become 5. So that corresponding elements will be added or subtracted. Now come to the next topic, that is the invertible matrix. Invertible matrix means, suppose two matrices are there, A and B. A and B are known as invertible matrix, or they will be called invertible matrix only and only when AB equal to BA, that is equal to identity matrix. अगर A को B के साथ मल्टीप्लाई करें या B को A के साथ मल्टीप्लाई करें, तो आपका आंसर जो है that should be identity matrix. In that case only you can say that A and B are invertible matrix. But keep one thing in mind, that A and B both must be a square matrix. Both must square matrix, because if they are diagonal matrix, so then in that case their multiplication will not be possible, because their orders are not same. So these should be a square matrices for this AB equal to B equal to I. So only two square matrices can be invertible matrices when their multiplication and reverse multiplication should be equal to identity matrix. So this is the property for identity matrix, and in that case B is known as the inverse of A. B is known as the inverse of A. We can write A inverse equal to B. And A is known as invertible matrix and B is known as the inverse matrix. And we have discussed that a rectangle matrix cannot be inverse matrix, because for that AB and BA will not be possible, because their orders are not same. One important condition, if V is the inverse of A, B is the inverse of A, then A should be a inverse of B. अगर ये वाला आपका आंसर डिफाइन है, अगर B A का इन्वर्स होता है तो A भी B का इन्वर्स होगा. Now come to the next thing, that is the if A and B, they both are the invertible matrix, means we can find the inverse. Invertible matrices of same order, then the inverse of AB that will be equal to the B inverse into A inverse. This is the property of this inverse, that if A and B are the invertible matrices of same order, then AB inverse must be equal to B inverse into A inverse. This is the property. Keep this thing in mind. We will now come to the exercise, that exercise 3.4 question number 1. Come to this exercise 3.4 question number 1. We need to find inverse of this matrix. Now see how to find.
to find the inverse of matrix by using elementary operation, that can be a row elementary or you can use column elementary, but keep one thing in mind, if you are using row then use row only, or if you are using column then use column only. You can't use row and column simultaneously in the single operation. Clear? So suppose how to find this inverse by using elementary operation. This matrix A is given, that is equal to A into I. अगर ए को आइडेंटिटी मैट्रिक्स के साथ मल्टीप्लाई करोगे तो भी आपको सेम मैट्रिक्स मिलेगा. अगर मैं इस मैट्रिक्स को आई राइट करता हूँ, इस मैट्रिक्स को आइडेंटिटी मैट्रिक्स बना देता हूँ, सपोज करो आई को इधर ट्रांसफर किया, ए को इधर लेके जाता हूँ, तो दिस विल बिकम ए इनवर्स इनटू ए. और दिस इज द प्रॉपर्टी यू नो दैट ए इंटू ए इनवर्स दैट इज ऑल्सो आइडेंटिटी मैट्रिक्स. तो हमको क्या करना है, ये मैट्रिक्स है, इसके साथ में हमें इक्वल टू में देखो क्या राइट करना है. वी आर राइटिंग दिस मैट्रिक्स ओनली 1 -1 2 and 3, and that is equal to the identity matrix 1 0 0 1 into A. Means we are writing this one, A equal to A into identity. We have written A identity into A. Now we are writing this. Now what we need to do, we need to find this one, I equal to inverse A. Means by hook or by crook we need to make this identity matrix by using elementary operation. एलिमेंट्री ऑपरेशन को यूज़ करके हमको इसको आइडेंटिटी मैट्रिक्स बनाना है. जो ऑपरेशन यहाँ यूज़ करेंगे सेम ऑपरेशन वी नीड टू इम्प्लीमेंट और वी नीड टू अप्लाई ऑन दिस मैट्रिक्स ऑल्सो. देन व्हाट हैपेंड व्हेन दिस मैट्रिक्स विल बिकम यूनिट मैट्रिक्स. जब भी ये मैट्रिक्स यूनिट मैट्रिक्स बन जाएगी तो ये जो गेन होगा दैट विल बी द ए इनवर्स. लेट्स स्टार्ट दिस क्वेश्चन, स्टार्ट टू सॉल्व. देखो सबसे पहले क्या करना है आपको, आइडेंटिटी मैट्रिक्स आपको पता है, ये डायगोनल जो प्रिंसिपल डायगोनल होता है 1 1 होता है, बाकी के रिमेनिंग डायगोनल्स 0 होते हैं. तो आपको कैसे भी करके ये वाला जो पोर्शन है ना इसको 0 बनाना है. ये 0 बनाने के लिए आप क्या करोगे, देखिए सिंपल सी चीज़ है, या तो आप रो यूज़ करो या कॉलम यूज़ करो. सिंपल सा एग्जांपल है कि अगर मैं इन दोनों मैट्रिक्सेस की बात करूं या फिर इन दोनों की बात करूं, आप रो एलिमेंट्री लगा सकते हो, कॉलम एलिमेंट्री लगा सकते हो. देखो इस एक्सरसाइज में 2 टाइप के क्वेश्चंस आपको मिलेंगे, एक 2x2 मैट्रिक्स का और एक 3x3 मैट्रिक्स का. तो हम ऐसा करते हैं, 2 क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, एक 2x2 का हम करेंगे रो को यूज़ करके और 3x3 का करेंगे कॉलम को यूज़ करके. सो लेट्स स्टार्ट टू सॉल्व दिस बाय यूजिंग रो ऑपरेशन. दिस इज R1 एंड दिस इज R2. देख सकते हैं इसको 0 बनाना है. अगर मैं इस वाले एलिमेंट्स को इसको डबल करके यहाँ पे माइनस कर देता हूँ, सब्ट्रैक्ट कर दूंगा, तो ये वाला एलिमेंट्स ऑटोमेटिकली 0 हो जाएगा. यू कैन सी 2 - 2 दैट विल बिकम 0. तो R1 में 2 का मल्टीप्लाई करेंगे, मीन्स हमको R2 को रिप्लेस करना है, दैट इज R2 सब्ट्रैक्टेड बाई डबल ऑफ R1. क्लियर है? R2 को सब्ट्रैक्ट करना है डबल ऑफ R1, तो ये बन जाएगा क्या 0. देखो क्या मिलेगा हमें, R1 तो कॉन्स्टेंट रहेगा क्योंकि R1 में हम कोई ऑपरेशन नहीं कर रहे हैं. R2 - 2 R1, फर्स्ट एलिमेंट्स के लिए बात करते हैं, 2 - 2 R1 दैट इज 0. 3 -2 तो ये प्लस हो जाएगा, प्लस का 2 हो जाएगा 3, क्योंकि देखो ऑपरेशन ऐसे लगाएंगे, R2 क्या है 3 है, -2 इंटू R1 क्या है माइनस का 1, तो ये हो जाएगा आपका 5. तो ये एलिमेंट्स बन जाएगा आपका 5. क्लियर है? सेम ऑपरेशन हमें यहाँ पे भी अप्लाई करना है, तो यहाँ पे भी R1 कॉन्स्टेंट रहेगा 1 0. इसके लिए अप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा आपका R2 - 2 R1, तो यहाँ पे आएगा आपका माइनस का 2 और ये आपका 1 ही रहेगा क्योंकि 0 से ये चेंज नहीं होगा एंड ए आपका साथ में चलेगा. क्लियर है? अब देखिए एक एलिमेंट्स जो हमें 0 मिल चुका है, दिस वन, अभी हमें इसको भी 0 बनाना है. अब देखो इसको कैसे 0 बनाएंगे, इसको 0 बनाने के लिए देखो हम क्या क्या कर सकते हैं. फर्स्ट थिंग ये कि हमें रो ही यूज़ करना है, कॉलम यूज़ नहीं करना है. एक तो हमें क्लियर दिख रहा है, इसको ऐड करेंगे तो ये 0 हो जाएगा, बट ये कॉलम ऑपरेशन होगा आपका, ये कॉलम में वर्टिकल ऐड करोगे कॉलम ऑपरेशन हो, तो हमको रो ही यूज़ करना है. तो यू कैन सी अगर इसको और इसको ऐड कर दें, लेकिन कैसे ऐड करोगे, इसको अगर इसके साथ ऐड करोगे तो क्या क्या करना पड़ेगा हमें. अगर मैं इसको 5 से मल्टीप्लाई कर देता हूँ तो दैट मीन्स वी आर अप्लाइंग ऑपरेशन विच मीन R1 रिप्लेस्ड बाई 5 R1 प्लस R2. मैंने क्या किया, इसको 5 से मल्टीप्लाई किया, 5 R1 प्लस R2. क्लियर है? तो ये माइनस का 5 प्लस 5 0 हो जाएगा. तो देखो R1 रिप्लेस्ड बाई 5 R1 प्लस R2, तो R2 तो 0, इसमें कोई इम्पैक्ट नहीं आएगा. सेम यहाँ करेंगे, R1 इज 5 R1 प्लस R2, तो 5 R1 प्लस R2 करेंगे तो ये कितना हो जाएगा 0. R2 पे कोई इम्पैक्ट नहीं पड़ेगा क्योंकि R2 में हम कोई ऑपरेशन नहीं कर रहे हैं, इक्वल टू. सेम यहाँ करना पड़ेगा 5 R1 प्लस R2, तो 5 R1 दैट इज 5 प्लस R2,
R2 ऐड करोगे तो ये 3 आ जाएगा आपका, 5R1 प्लस R2 तो ये ओनली 1 चला जाएगा ऊपर। ये ऑपरेशन में आपको R1 R2 की वैल्यू पुट करते जानी, आपको डायरेक्टली मिलता जाएगा और इसमें कोई चेंज नहीं आएगा, -2 1। अब हमें क्या करना है, इसको 1 1 बनाना है। तो 1 1 बनाने के लिए हम क्या कर सकते हैं, वी कैन टेक 5 कॉमन, और या फिर हम ये भी कर सकते हैं R1 रिप्लेस्ड बाई 1/5 R1 एंड R2 रिप्लेस्ड बाई 1/5 R2, ये भी कर सकते हैं हम। तो अगर ये हम करेंगे तो देखो क्या मिलेगा, ये 1 हो जाएगा और ये भी 1 हो जाएगा, ये आपका a यहाँ साथ में चलेगा। तो यहाँ से अगर करेंगे तो ये भी क्या आएगा आपका 3/5, ये आपका 1/5 and this will be -2/5 and this is 1/5, that is equal to, and that multiplied with a. So now you got what, identity matrix equal to, this is a, so this is a inverse into a. So now this is your a inverse, this is your answer for this question. Now the same operations you can do in the second questions. Either you can use row elementary or you can use column elementary, third also, fourth also, means till 14th question you can do these operations and you can find a inverse. Now in this 2x2 matrix we have used row elementary operation. You can also use column elementary operation. It is not bounded that you need to use particular this operation, but if it is mentioned in the question then you need to use particular operation. Yes, more one important thing कि आफ्टर अप्लाइंग सम ऑपरेशन, जैसे सपोज करो तुमने मैट्रिक्स के अंदर कोई ऑपरेशन अप्लाई किया, आफ्टर अप्लाइंग सम ऑपरेशन इफ यू आर गेटिंग एनी पर्टिकुलर रो, एनी रो और कॉलम, एनी रो और कॉलम कंप्लीटली ज़ीरो, अगर आपके किसी भी रो या कॉलम के सारे एलिमेंट्स ज़ीरो हो जाते हैं, उस केस में योर ए इनवर्स डज नॉट एग्जिस्ट, उस केस में आपका ए इनवर्स एग्जिस्ट नहीं करेगा। क्लियरली ध्यान रखना कि अगर आपके किसी भी ऑपरेशन लगाने के बाद, सपोज यू आर अप्लाइंग एनी रो और कॉलम एलिमेंट्री ऑपरेशन एंड एट दैट टाइम इफ यू आर एनी पर्टिकुलर रो और पर्टिकुलर कॉलम के अगर सारे एलिमेंट्स जीरो हो जाते हैं तो इन दैट केस ए इनवर्स विल नॉट एग्जिस्ट। नाउ कम टू दिस क्वेश्चन, दिस इज ऑफ 3x3 मैट्रिक्स। तो यहाँ पे हमें जो आइडेंटिटी मैट्रिक्स यूज़ करेंगे दैट शुड ऑल्सो बी ऑफ 3x3, 1 0 0 0 1 0 एंड 0 0 1 एंड ए आपका साथ में चलेगा। नाउ what we need to do, we need to apply some operations here. Let's use column operation. column operation अगर यूज़ करते हैं तो देखो पहले आपको करना क्या है, फर्स्ट यू नीड टू यूज़ दैट ऑपरेशन इन विच योर मैक्सिमम एलिमेंट्स कैन बिकम जीरो। आपको प्रायोरिटी क्या रहेगी, आपके पास ये वाले एलिमेंट्स आपको जीरो बनाने हैं, ठीक है। कोशिश करना कि आपको प्रिंसिपल डायगोनल्स का कोई एलिमेंट्स आपका ऑपरेशन लगाते टाइम जीरो ना बने। तो देखिए इसके अंदर देखते हैं हम क्या करेंगे। सबसे पहले कॉलम C1 C2 C3, देखिए अगर C2 और C3 को ऐड कर दें तो 3 और 3 ये जीरो हो रहा है और इसमें ये वाला एलिमेंट्स भी जीरो, तो दो एलिमेंट्स हमारे जीरो बन रहे हैं। सो वी विल यूज दिस ऑपरेशन। सो लेट्स वी आर अप्लाइंग दिस ऑपरेशन दैट इज C2 रिप्लेस्ड बाय C2 प्लस C3। तो अगर C2 को रिप्लेस करते हैं C2 प्लस C3 तो देखिए क्या बनेगा हमारा, C1 कांस्टेंट रहेगा, 2 2 3, और ये ध्यान रखना ये भी कांस्टेंट रहेगा C3, क्योंकि C3 के अंदर ऑपरेशन अप्लाई नहीं कर रहे हैं, वी आर अप्लाइंग ऑपरेशन इन द C2। दिस विल बिकम 0 बिकॉज -3 + 3 0, 2 3, दिस विल बिकम 5 -2 2, दिस विल ऑल्सो बिकम 0 एंड हियर यू विल गेट 3 3 एंड 2। क्लियर? सेम ऑपरेशन वी नीड टू अप्लाई हियर, दैट इज 1 0 0 कांस्टेंट एंड C2 + C3, C2 + C3 0, 1 + 0 1 and 0 + 1 that is also 1, 0 0 1, this will not have any impact. So we got this matrix after applying this operation, that is C2 plus C3. Now what we need to do, we need to make some elements more zero. Now you can see this 2 3 2 3, these are the common elements. So if we will apply some operation here तो 2 elements will become 0। अगर देखो इस C1 के अंदर अप्लाई करते हैं तो ये दोनों जीरो बन जाएंगे, लेकिन हम नहीं चाहते कि प्रिंसिपल डायगोनल का कोई एलिमेंट जीरो बने, तो हम क्या करेंगे यहाँ अप्लाई करेंगे ये वाला ऑपरेशन C3 के अंदर। तो C3 रिप्लेस्ड बाय C3, देखिए इसमें से इसको माइनस करना है, लेकिन क्लियर है कि अगर आप 3 - 2 करोगे तो 1 मिलेगा, तो हमें कुछ ऐसा माइनस करना है जिससे क्या मिले 0। तो 0 के लिए क्या करेंगे, अगर इसको 3/2 से मल्टीप्लाई कर देते हैं तो व्हाट वी विल गेट,
2 × 3/2, तो तुम्हें क्या मिलेगा 3 मिलेगा, और माइनस सब्ट्रैक्ट करोगे तो 0 हो जाएगा. सो वी आर अप्लाइंग व्हाट 3/2 C1. सो वी आर अप्लाइंग 3/2 C1. तो देखिए क्या क्या मिलेगा हमें. चलिए अप्लाई करते हैं इस ऑपरेशन को. अप्लाई करने के बाद देखिए ये it will not have any impact because we are not applying operation here. Now C3 will be changed. 3 minus 2 into 3/2, तो ये भी 0 हो जाएगा आपका, और ये एलिमेंट्स भी 0 हो जाएगा क्योंकि दोनों सेम है. 2 के साथ क्या होगा देखो, अगर यहाँ 2 पुट करते हैं 2 minus 3/2, C1 कितना है 3, तो it will become 2 minus 9/2, that will become minus 5/4. After taking LCM you can take, it is easy. So you will get minus 5/2. 5/2 you will get. Same operation we need to apply here. That is your first column will be constant. Now third will be changed. C3 minus 3/2 C1. So C3 minus 3/2 C1. So you will get minus 3/2. C3 minus 0 is 0. It will not have any impact. C3 minus it will also 0, so it will not have any impact. So you will get this. अभी देखिए अभी हमें और भी कुछ करना है. अभी हमारी यही मैट्रिक्स हमें मिली है, इसके भी और भी एलिमेंट्स हमें 0 बनाने होंगे. इसको 0 बनाने के लिए हम देखो अब क्या कर सकते हैं. हमें ये वाला पोर्शन जो है इन दो एलिमेंट्स को 0 बनाना है, क्योंकि डायगोनल्स के एलिमेंट्स अगर आपके 5 भी नहीं आते ना तो कोई प्रॉब्लम नहीं है. अगर आपका 1 1 नहीं आ रहा है डायगोनल में तो भी इतना बड़ा कोई इश्यू नहीं है, लेकिन पहले आपकी प्रायोरिटी है कि इनको 0 बनाएं. देखिए इसको 0 बनाने के लिए मैं क्या कर सकता हूँ. अगर सपोज करो ये आपका C1 है, C1 को रिप्लेस करता हूँ मैं किससे, इसमें अगर मैं 2/5 का मल्टीप्लाई कर दूँ तो ये 2 बन जाएगा. तो C1 को रिप्लेस करता हूँ माइनस का 2/5 C2 से. देखिए क्या मिलेगा हमें. 2 ये आपका C1 रिप्लेस हो रहा है 2, ये तो 0 0 है, इसका कोई इम्पैक्ट नहीं आएगा. पहले वो मैट्रिक्स राइट कर देते हैं एलिमेंट्स जिनसे कोई इम्पैक्ट नहीं आएगा, बिकॉज दे आर नॉट गोइंग टू चेंज. ओके. और ये ध्यान रखना कि ये जो ये आइडेंटिटी मैट्रिक्स के साथ ए हमेशा साथ में चलेगा. क्लियर है. देखिए 2 हमें लगा रहे हैं C1 रिप्लेस्ड बाई C1 माइनस 2/5 C2. C1 रिप्लेस्ड बाई माइनस C1 माइनस 2/5 C2. तो C1 माइनस 2/5 C2 कितना है 5 5 कैंसिल आउट, 2 माइनस 2 0 बन जाएगा. ये C1 माइनस 2/5 C2, तो इस पर कोई इम्पैक्ट नहीं आएगा, तो ये 3 ही रहेगा. अब ये सेम ऑपरेशन हम करेंगे किसके साथ, आइडेंटिटी इस वाली मैट्रिक्स के साथ. तो देखिए इस मैट्रिक्स के साथ करने पे क्या मिलेगा हमें. क्लियर है. 1 C1 माइनस 2/5 C2, तो इस पर 0 पे के साथ कोई इम्पैक्ट नहीं आएगा, ये 1 ही रहेगा. C1 माइनस 2/5 C2, तो आपको क्लियर हो जाना चाहिए कि यहाँ पे माइनस का 2/5 आएगा, यहाँ पे भी माइनस का 2/5 आएगा. बाकी के ये सारे एलिमेंट्स आपके कांस्टेंट रहेंगे, इन पर कोई इम्पैक्ट नहीं आएगा. दैट इज 0 1 1 माइनस 3/2 0 1, और आपका यहाँ A साथ में चलेगा. यहाँ कोई आपको इश्यू नहीं होना चाहिए. अब इस मैट्रिक्स के साथ और एलिमेंट से ऑपरेशन हमें यूज़ करने हैं. तो यहाँ क्या करना होगा, अब हमारी प्रायोरिटी इस 3 को 0 बनाते ही हमारा लगभग अप्रॉक्सीमेटली आइडेंटिटी मैट्रिक्स में कन्वर्ट हो जाएगा. तो इसको 0 कैसे बनाएंगे. देखिए इसको 0 बनाने के लिए हम क्या करेंगे, 3 है और ये माइनस का 5/2 है, तो यहाँ कुछ हमें करना होगा. तो यहाँ देखिए क्या करेंगे, अगर 3 है तो हमें यहाँ कितना चाहिए, इसमें से हमको 3 मिलना चाहिए. तो यहाँ 3 कैसे मिलेगा, देखो इसको 3 में कैसे कन्वर्ट करेंगे. ये हमारे पास 5/2 है, इसको अगर मैं 6/5 से मल्टीप्लाई करता हूँ, 5 से 5 कैंसिल, 2 3 जा 6, तो हमें 3 मिल जाएगा. क्लियर है. हमें कोई ऐसी टर्म सर्च करनी है जिससे कि हमें 0 मिले. तो हम क्या करेंगे, C1 जो है उसको रिप्लेस करेंगे. लेकिन एक चीज़ और याद रखना कि एलिमेंट्री ऑपरेशन लगाते टाइम कुछ ऐसा भी कंसेप्ट आपको लर्न करना होगा कि आपका ये वाला एलिमेंट जो है वो डिस्टर्ब ना हो जाए, क्योंकि अगर ये फिर से इंटीजर बन जाएगा तो हमारे लिए एक नई प्रॉब्लम क्रिएट हो जाएगी. तो अगर हम C3 के साथ कोई ये ऑपरेशन यहाँ लगाएंगे तो देखो ये दोनों एलिमेंट्स 0 है, तो ये इम्पैक्ट यहाँ नहीं करेंगे. तो ये वाले एलिमेंट्स आपके जैसे हैं वैसे ही रहेंगे, तो इसीलिए हम ये अप्लाई कर सकते हैं.
तो क्या करना पड़ेगा हमें, यहाँ ऑपरेशन लगाना पड़ेगा हमें, दैट इज C1 रिप्लेस्ड बाई C1 प्लस 6y5 दैट इज C3। तो ऐड कर दो, क्या आएगा, यहाँ आपको मिल जाएगा, ऐड करने पे ये वाला ऑपरेशन लगाओगे तो 2 0, ये वाला पोर्शन 0 हो जाएगा क्योंकि हमने 0 बनाने के लिए ही ये सब किया था। और बाकी सब क्या रहेगा, सेम रहेगा जैसा आपका है 0 5 0 0 0 -5/2। और यहाँ पे आपका ये फिर से चेंज होगा, ये पोर्शन आपका फिर से चेंज होगा। ये कैसे चेंज करना होगा हमें, 1 इसके साथ चेंज होगा -3/2 के साथ। क्यों, क्योंकि ऑपरेशन क्या है हमारा, C1 रिप्लेस्ड बाई C1 प्लस 6y5 C3। तो C1 कितना है 1 रिप्लेस्ड बाई 6y5 C3 कितना है माइनस का 3/2। तो 2 3 जा 6, यू विल गेट 1 माइनस 9/5। तो यहाँ पे आपको मिलेगा माइनस का 4/5। ये ऑपरेशन आप यूज़ करके भी देख सकते हो। -2/5 जीरो है तो इसका कोई इम्पैक्ट नहीं आएगा, इट विल से -2/5। ये -2/5 है और ये आपका 1 है, तो आपको क्या करना है, -2/5 प्लस 6/5 C3, 6/5 C3 दैट इज 1। तो आपको क्या मिलेगा यहाँ से 4/5 प्लस का, सो यू विल गेट हियर 4/5। और रिमेनिंग एलिमेंट्स हियर विल बी कांस्टेंट बिकॉज दे आर नॉट चेंज। 0 1 1 -3/2 0 1 ए। ये आपको एक मैट्रिक्स मिली है जो अप्रॉक्सीमेट आइडेंटिटी मैट्रिक्स जैसी है लेकिन है नहीं। क्यों, क्योंकि इसके एलिमेंट्स 1 1 1 नहीं है। तो देखो इसके एलिमेंट्स 1 1 1 करने के लिए हम क्या करेंगे, अगर मैं C1 मैट्रिक्स को रिप्लेस कर देता हूँ हाफ ऑफ C1 के साथ तो ये 1 हो जाएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी बाकी में। सेकंड अप्लाई करूँगा C2 के साथ में, दैट इज 1/5 C2, तो ये भी 1 हो जाएगा, यहाँ पे भी कोई इश्यू नहीं आएगा। C3 के साथ अप्लाई करूँगा मैं, दैट इज -2/5 C3। C3 के साथ में ये वाला ऑपरेशन लगाऊंगा तो ये भी 1 हो जाएगा, यहाँ पे भी कोई इश्यू नहीं आएगा रेसिप्रोकल करके। लेकिन एक चीज़ याद रखना, यहाँ मैं 3 ऑपरेशन एक साथ यूज़ कर रहा हूँ, यू कैन ऑल्सो यूज़ 3 ऑपरेशन, बट ऐसे ऑपरेशन यूज़ करोगे जो तीनों आपस में क्या हो, इंडिपेंडेंट। अगर डिपेंडेंट हुए देन यू कैन कांट यूज। फॉर एन एग्जाम्पल मैंने यहाँ C2 यूज़ किया तो C2 कहीं पे भी यूज़ नहीं हुआ है। क्लियर, तो क्या बनेगा देखते हैं। ये आपका 1 बन जाएगा, ये भी आपका 1 बन जाएगा और ये भी आपका 1 बन जाएगा। सेम ऑपरेशन यहाँ अप्लाई करते हैं हम, चलिए 1/2 C1 1/2 C1, तो 1/2 C1 करोगे तो क्या आएगा, ये आपका हाफ हो जाएगा, ये हाफ होते ही ये हाफ हो जाएगा तो ये आपका बन जाएगा माइनस का 2/5 माइनस का 1/5 और ये आपका 2/5। यहाँ पे 1/5 करेंगे तो आपका 0 1/5 एंड 1/5। ये आपका -2/5 है, इसके साथ मल्टीप्लाई करोगे तो ये बनेगा माइनस का 3/2 इंटू -2/5, माइनस माइनस विल बी कैंसल्ड आउट एंड 2 इंटू कैंसल्ड आउट, तो यू विल गेट 3/5। 0 पे कोई इम्पैक्ट नहीं आएगा और माइनस का 2/5 का 1 से मल्टीप्लाई करोगे तो माइनस का 2/5 आपका आंसर आ जाएगा और ये ए। तो यू गॉट दिस आइडेंटिटी मैट्रिक्स and this one is the A inverse into A, so this is your A inverse, that is the final answer for this question. If you got this exercise, you can also try that remaining questions of this exercise. In the same way you can also try this question number 16, you can also try question number 17. Now come to this question number 18. Question number 18 is saying matrices A and B will be inverse of each other only if these conditions we have discussed in this session earlier, that AB equal to BA should be identity matrix for any two square matrices to be invertible. So E इसका option होगा, D is the correct answer. You can also try this another questions, that remaining questions of this exercise. If you really like it, please like, share and subscribe. Thank you.